दादागिरी नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा। हाय 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 हाय, अनएम्प्लॉयड को ध्यान दो। हाय 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 हाय, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। justice, justice. First of all, like we have gathered today along with Arunachal Pradesh Unemployed Civil Engineers Association. We are doing this rally in collaboration. So our demands are quite common. Demands like the officiating culture in Arunachal Pradesh, number one. Post-creation of JEs and As in all the departments of engineering departments. And the PWD rights, person with disabilities rights. So these points are common, these 3 points. So first point, talking about officiating culture in Arunachal Pradesh. See, first of all, what is officiating? Many confused, many don't know what officiating really means. Nah? So officiating really means, like, just suppose there is one vacant AE post. So due to, I don't know, some unfortunate events, he is compelled to discontinue, resign from his post. So what happens then is one post is vacant, so immediately we cannot put it out for recruitment, right? There is to be certain, we have to talk to the APPSC and all, certain procedures. So that time the department, they need to handle that one vacant post, because this will affect the efficiency of the whole department system. So that's why the JEs below AE ranks, JEs will be assigned that vacant post, just temporarily, just to keep the working, keep the working efficient, keep the working like that should not obstruct the department from doing lesser work. So that's why JEs are assigned just for some temporary time to fill up that void and carry on the work. But what happens in Arunachal Pradesh, I'm not aware of other states, but in Arunachal Pradesh what happens is those JEs or those AEs also, like they capture those EE posts if the same happens, if EE post is vacant. So all the J's and A's, those who officiate like that, actually they become regular. That's the sad point. That's the sad culture running all over Arunachal Pradesh, all over departments, not only in engineering departments. So that's very sad, because of that what happens is, like, we are fresh recruits, right? It's not like we love to hang around and make associations, go office to office every day, spend our pocket money, right? We don't have that. We don't love this. We don't love doing this now. But we are compelled. Why? We are compelled because departments, the government, they don't work. They are not in favor of the youths. Unemployed youths बढ़ते जा रहे, बस बढ़ते ही जा रहे. और इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस इतने सारे होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट होते हैं, तो वैसे अरुणाचल में भी हाईएस्ट है. तो बोलते हैं कि फिर पेरेंट्स बोलते हैं, सब जो आप भी जिसको भी पूछेंगे, बोलते हैं कि स्कोप कम है, इलेक्ट्रिकल स्कोप कम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर स्कोप कम है. कम नहीं है, ठीक है, स्कोप कम है ही नहीं. स्कोप क्यों कम है बोल रहे, क्योंकि ऑफिसर्स लोग एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होके ऑफिसिंग करके, बहुत लोग तो नेपोटिज्म भी करते हैं. नेपोटिज्म करके क्या वो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं क्या डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट इज़ ए प्रोफेशनल ना, उससे आप फैमिली प्लानिंग करेगा, अपना नेपोटिज्म करेगा तो डिपार्टमेंट नहीं चलेगा ना. engineers being to be an engineer is not a joke ना. उसको well educated, well qualified, well aware of the system, especially electrical department तो बहुत, electrical mechanical department बहुत dangerous होते हैं. हाई वोल्टेज से हम प्ले करते हैं, हाई वोल्टेज से हमेशा हमारा जो वर्क रहता है, वर्क नेचर ऐसा है, तो उसमें आप किसी को भी ला देंगे तो नहीं होगा ना. तो नेपोटिज्म का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि
सुनने को आता है सब कुछ। बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं अभी डिस्कोर्स करूँगा तो अच्छा नहीं होगा। आपको ही पता है, हमको ही पता है, सबको पता है। तो ये सब कल्चर बंद होना है। हाँ, और अच्छा तो इससे पहले आप लोग ने किसी को अलग वे में डिपार्टमेंट को रीच करने की, गवर्नमेंट को अपनी बातें रखने की एसोसिएशन की तरफ से कोशिश की, या फिर ये आप लोगों का पहला अटेम्प्ट है इस तरीके से आप लोग पहली बार अपना ग्रीवेंसेस रख रहे हैं? ओके, हमारा एसोसिएशन 2015 का है, इस्टेब्लिशमेंट डेट 2015 का है। तब समय के जो प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने भी काफ़ी वेरी रिगोरस टायरलेस एफर्ट्स किया है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी किया है। तो वो उनका चलते जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि टाइम इज़ द लिमिट ना, मतलब टाइम इज़ मनी, क्योंकि टाइम को हमें मैनेज करने का कभी कभी यहाँ वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हमें कंसिस्टेंसी हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो हमारा मतलब नेचर ही ऐसे, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं ना, मैं बोला हूँ फुल टाइम है, हम फुल टाइम नहीं है, हम रहता है बीटेक किया तो, और यही का भी कुछ ऐसे टाइम फ्रेम रहता है। उसके बाद ही वो लोग प्रमोशन रहता है। लेकिन वो लोग प्रमोटेड वाला आउट ऑफ टर्न, मतलब आउट ऑफ टर्न वो लोग सीट लेके रखते हैं हायर पोस्ट का। तो ऐसे करने से क्या है, डिपार्टमेंट का भी एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली ना एफिशिएंसी कम होगा, उसमें फिर हम लोग को भी फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल, डिप्राइव हो रहा है। तो दोनों साइड से लूज़ हो रहा है। तो ये कल्चर बहुत एम्बेरेसिंग है एक्चुअली ना। तो आप अभी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के बाद आपको क्या कुछ उम्मीद है कि आप लोगों की बातें वहाँ तक पहुँचेंगी? या उम्मीद तो है। पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हो, इस सेकंड टाइम है ये हाँ एक्चुअली प्रोटेस्ट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप क्या स्टेप लेंगे? हाँ स्टेप्स वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो एसोसिएशन जो भी रिफॉर्मेशन जो भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी प्रेशर ग्रुप का जो भी स्टेप्स होता है, हम लोग जो चैनलाइज जो भी है प्रॉपर वे से लेंगे। कुछ हम वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम वायलेंस करने वाले लोग नहीं, हमें बस डेवलपमेंट चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए। अभी मेरा जो कलीग्स बोला था उसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो अभी यहाँ पर हम लोग का पोस्ट क्रिएशन भी नहीं हो रहा, क्योंकि डिवीज़न पे डिवीज़न क्रिएट करते जा रहा है। हर साल में डिवीज़न क्रिएट कर रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ ए जो है डिवीज़न क्रिएट करके उसमें ऑफिसरिंग में उसमें एजुकेटिव में चला जाता है। तो अगर आप लोग डिवीज़न क्रिएट कर रहा था, साथ में मैन पावर भी क्रिएट करना है। बस आप अपना पॉलिटिकल भी जो व्हाटएवर अपने बेनिफिट्स के लिए सिर्फ डिवीज़न क्रिएट करता है, बट उसमें आप में मैन पावर रिक्रूट नहीं करता है। डिवीज़न इतना सारा हम लोग का ये पीसफुल रैली जो है कि ऑल इंजीनियर्स जो अनएम्प्लॉयड होकर बैठा है स्टेट में, तो उसको हम लोग अभी किस लिए इससे हो रहा है उसको हम लोग ये प्रेस करने के लिए आए हैं ना। ये हमारा मांग है कि इस गवर्नमेंट में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग विंग्स, उसमें कोई भी मतलब बात नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोग का ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो वो चीज़ को हम लोग प्रेस करना है। तो मेन पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट जो है, जितना भी जो ऑफिसटिंग है इंजीनियरिंग विंग्स रिगार्डिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, उसको इमीडिएट मतलब कैंसिल करना है, हटाना है। उसके बाद सेकेंड जो है हम लोग का जो ए पोस्ट जो अभी जो आ रहा है उसको इंक्रीज़ करना है। वेरास हम लोग को ओनली 18 पोस्ट जो अभी जो APSC को जो एग्ज़ाम दिया है उसमें 18 पोस्ट सिर्फ दिया है, तो उसमें मोर देन 4000 समथिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक पोस्ट को हम लोग को 238 करके फाइट करना पड़ता है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा। तो उसका हिसाब से हम लोग मानना है कि उसको एक पोस्ट को बढ़ाना है। तो ये सेकंड पॉइंट है। ये दोनों को हम लोग मेन फोकस रखता हूँ अभी। तो बाकी जो डिमांड है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहेंगे फ्यूचर में। लेकिन ये दोनों पॉइंट को हम लोग आज जो स्ट्रेटेजी जो लाया है, जितना भी जो स्टूडेंट जो आया है उसको हम लोग मांगने के लिए जो आया है आज। ऑल नेशन का ये यंगेस्ट CM है, तो ये एक हम लोग एक यूथ का एक आइकॉन दिखता है हमारा CM साहब को। तो जो एक इससे आइकॉन होकर हमें यूथ का जो विचार है, यूथ का जो प्लेस है, उसको ये तो सुनना चाहिए। और ये तो हम लोग तो मानता है कि एक सब तो प्यार करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट को, सब आपका CM को, सब तो मानता है अच्छा है बोलते। लेकिन भी हम लोग को जो अभी तक जो डिले होके बैठा है, किस कारण से डिले हो रहा है, क्यों हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो, ये हम लोग को मतलब बहुत दुख की बात अभी कहना पड़ता है कि अभी तक हम लोग का रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया इस गवर्नमेंट से। लेकिन हम लोग एक मानता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट एक सेंसिटिव वाला गवर्नमेंट है और ये यूथ को देखना चाहिए। कुछ भी यूथ है, हमारा CM साहब कुछ भी यूथ है, यूथ आइकॉन का हिसाब से हम लोग उसको मानते हैं। उसके तरफ से हम लोग को अभी जो हम लोग को जो मांग है उसको सही वो सुनना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज भी मेरी मेहनत से हम लोग धरना किया है। उस दिन जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ है उसमें हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए आज हम लोग इस चैनल में आया है।
क्योंकि जो आप लोग का ऑल अरुणाचल सिविल इंजीनियर अनएम्प्लॉयड वो एसोसिएशन था तो ना आप लोग का, तो इन टोटल अरुणाचल प्रदेश का कितना स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड जो इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, अगर आप बता पाए तो? अभी एग्जैक्ट जो नंबर तो हम नहीं दे पाएगा, लेकिन मोर देन 8,000 प्लस टू और दी है स्टेट में है जो रजिस्टर पे है, तो अभी अनरजिस्टर वाला भी बहुत है। देखो हमारा यहाँ में पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि सिर्फ जो इंजीनियर और डॉक्टर बना है, कोई नहीं सोचते कि हम लोग को अलग जॉब में जाओ या अलग बिजनेस करो, लेकिन हमारा पेरेंट्स जो सोचते हैं कि बच्चा को इंजीनियरिंग में पढ़ाना है, लेकिन वेरस यहाँ आने से फिर इंजीनियरिंग जॉब जो नहीं मिल पाता है तो बहुत टफ हो जाता है। तो वेरस हमारा स्टेट में भी इंडस्ट्रियल भी नहीं है, और जहाँ कंपनी है जहाँ में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉय हो जाओ, इससे भी नहीं होके अभी गवर्नमेंट जॉब में ही डिपेंड होता है यहाँ का जो है इंजीनियर लोग, जो इंजीनियर पढ़ के आता है तो गवर्नमेंट जॉब डिपेंड होकर आता है, तो इसके वजह से हम लोग को यहाँ में जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को ही डिपेंड है। तो अब इसे भी है कि यहाँ में देखो इंजीनियरिंग हर फैमिली में सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग बनाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, सबको इंजीनियरिंग में भेजता है, कोई अलग जगह में भेजता भी नहीं है। तो इसलिए वो सोच को भी हम लोग भी सोचना चाहिए। उसके बाद यहाँ में देखो इंजीनियरिंग जैसे कि जब मुर्गी जब अंडा पैदा होता है, इसका जैसा पूरा आ रहा है इंजीनियरिंग, हर डिपार्टमेंट में अब इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहा है हर जगह में, तो इसलिए बहुत ये फ्यूचर में भी अब इफेक्ट होगा। अभी जब अब एक्शन नहीं लेगा तो फ्यूचर में भी बहुत इफेक्ट होगा, वही हम लोग सोचते हैं। और ब्रीफिंग के बाद में रेस्पॉन्स दिया है, इसलिए आप लोग ने पीसफुल आज रैली किया, कम आप लोग का जो धरना भी आप लोग किया है, तो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा जस्ट इन केस आफ्टर दिस रैली भी अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है तो? आफ्टर दिस रैली तो हम लोग अप्रोच करेगा जितना भी, अभी भी हम लोग मीडिया के थ्रू से हम लोग अप्रोच करते हैं कि हमारा सीएम साहब जो है ये यूथ का आइकॉन है, यूथ एक खुद भी यूथ है, हम लोग को सुनना चाहिए, लेकिन भी अगर उसका बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग आप लोगों को बताएगा और क्या स्टेप लेगा क्या स्टेप नहीं लेगा ना फ्यूचर।